That's right, ladies and gentlemen. This is Dr. Jaishankar, the Minister of External Affairs on TRS. Possibly the most requested episode we've had in the longest time because we've done so much geopolitical content and this legend has come up so much on the show that we just had to bring him on TRS. Keep in mind, this is a very short episode. There was a time constraint because of schedules on that particular day. So Time constraint. Time constraint मतलब है a time constraint is a limitation on the amount of time available to complete a task or project. मतलब कि जब किसी काम को करने के लिए जब समय की बाध्यता हो, कोई समय निश्चित हो, तो उसे हम कहते हैं, उस टास्क को हम कहेंगे टाइम कंस्ट्रेंट है वो टास्क। मतलब कि उसमें एक समय की लिमिट है कि इतने समय में वो काम कर लेना है, मतलब टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट है। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द टाइम कंस्ट्रेंट फॉर कंप्लीटिंग द एग्जाम इज 2 hours। मतलब एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए 2 आवर की समय बाध्यता है। I would say probably people are more interested in foreign policy nowadays. And maybe they'll come to watch you. So I mean, geopolitics is one of those subjects that people have been lapping up only recently, but lapping it up heavily. And you're the poster boy for everything that's happening correct geopolitically for India. लैपिंग अप मतलब होता है to enjoy something very much। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा enjoy करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लैपिंग अप। Everyone clapped and cheered and you could see he was lapping it up। मतलब कि बहुत सारे लोग, सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे थे, उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि वो बहुत खुश हो रहा था। He was lapping it up. Simple question for you. Who is Dr. S. Jaishankar the man? Like that people don't know. I'll tell you why. Right now you're very popular on shorts and reels for your very aggressive comebacks and your very aggressive responses. And in many ways, I feel like Virat Kohli and yourself are the faces of young India. In some ways, this is how young India. There's a slight age difference between us. No, but you're still the guy young India is like cheering for. When we see you up there talking to all these people from other countries, we're like, yep, that's the response that they should get. Aggressive मतलब होता है showing anger and a willingness to attack other people। मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा उग्र होता है या किसी के प्रति उग्र होता है तो उसे हम बोल देंगे एग्रेसिव है वो बंदा, या उसका नेचर एग्रेसिव है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हिज एग्रेसिव बिहेवियर वरीड हिज फ्रेंड। मतलब कि जो उसका उग्र जो बिहेवियर था वो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए चिंता का विषय था। एग्रेसिव को और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे द कंपनी लॉन्च्ड एन एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन। मतलब कि कंपनी ने लॉन्च किया एक एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन को। मतलब कि उन्होंने मान लेते हैं कि बहुत सारा पैसा इकट्ठे लगा दिया, बहुत ही वो श्योर थे कि ये मार्केटिंग कैंपेन सक्सेसफुल रहेगा, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसमें फेल होने का भी चांस था और सक्सेसफुल होने का भी चांस था। तो ये उनका एग्रेसिव मार्केटिंग का तरीका था। वो हर जगह होर्डिंग लगवाना चाहते थे, हर जगह सब कुछ करना चाहते थे। तो एक उग्र बिहेवियर के लिए हो सकता है और एक उग्र इस तरह के लिए हो सकता है। दोनों केस में हम एग्रेसिव का यूज कर सकते हैं। Look, I'm a trained diplomat whose general SOP is, play it cool, sort of don't make too many waves, etc. Now, partly I've transitioned into being a political face, okay? But even I would say the diplomatic side of me, which is still very deep. Transition मतलब है having changed from one state, condition or phase to another। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चले जाना या एक फेज से दूसरे फेज में चले जाना को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। जब कोई चीज बदल जाती है तो उसे कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे कि सी ट्रांजिशनड फ्रॉम स्टूडेंट टू प्रोफेशनल सीमलेसली आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी। मतलब कि वो बदल गई एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल में बहुत ही आसानी से, एक ग्रेजुएट होने के बाद फ्रॉम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद वो बहुत ही आसान मतलब ईज से स्टूडेंट टू प्रोफेशनल में बदल गई।
I am 100% sure that even on a geopolitical scale, there is a role of your sixth sense. Absolutely. I agree with you. Can you talk a little bit about this? Like a slightly higher level of pattern recognition, or even go one level higher than that? Is there like a spiritual aspect? I mean, I use that word cautiously. No. Cautiously. इसका pronunciation है cautiously. In a careful, guarded manner, taking care to avoid potential risks or mistakes. मतलब कि कोई काम बहुत ही केयरफुली करना, बहुत ही मतलब सावधानी से करना, तो उसे हम बोलते हैं cautiously. The driver cautiously navigated the icy roads, ensuring the safety of passenger. मतलब कि जो ड्राइवर था वो बहुत ही सावधानी से उसने जो बर्फ वाली रोड थी उससे निकाला ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो सेफ रहें. The strategic ideas, the grand vision. Very seriously, you have the revolutionary concepts that you chart out, okay, this is a different way of looking at a problem. That's one skill. And then you have going down to the details saying, okay, this needs to be tweaked, that detail needs to be looked at, this problem needs to be fixed. Guys, you haven't done the backup on this. Tweaked मतलब है to make a small adjustment or modifications to something, typically in order to improve it or make it more suitable for a particular purpose. मतलब किसी चीज में बहुत ही कोई छोटा सा एडजस्टमेंट करना ताकि वो इम्प्रूव हो जाए या किसी चीज के लिए वो सुटेबल हो जाए. जैसे कि शी ट्वीक द रेसिपी बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर. मतलब कि उसने थोड़ा सा रेसिपी को चेंज कर दिया, थोड़ा सा नमक डाल के ताकि एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाए उसमें. तो इसी तरह आप मशीनों के लिए भी यूज कर सकते हैं कि लैपटॉप बहुत स्लो चल रहा था तो उसने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया लैपटॉप को जिससे लैपटॉप फास्ट चलने लगा. तो इस तरह से आप ट्वीक का इस्तेमाल कर सकते हैं. Today, it is all about building strengths. That when you say make in India, when you say startup India, when you say Gati Shakti, nobody is going to manufacture in India if your infrastructure is lousy. Okay? So, lousy मतलब है very poor or bad in quality, unsatisfactory or inferior. It can also refer to feeling unwell or sick. मतलब कि कोई चीज जब बहुत ही गंदी होती है या बुरी क्वालिटी की होती है या जो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती है या इंफीरियर होती है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की, तो उसे हम बोलेंगे लॉजी. या कोई अगर बहुत ही बीमार है तो उसको भी हम बोलेंगे लॉजी. जैसे द मूवी वॉज लॉजी, द एक्टिंग वॉज टेरेबल एंड द प्लॉट मेड नो सेंस. मतलब कि जो पिक्चर थी, जो मूवी थी, वो बहुत ही गंदी थी, अच्छी नहीं थी, एक्टिंग भी बहुत ही बुरी थी, टेरेबल थी, और जो प्लॉट था उसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आया. मेड नो सेंस. mission in London and trying to pull down a flag. So absolutely, it got under my skin. So, or if people, they try and score points, I personal points, I just shrug it. Okay, I put. But if I feel in some way the collective I, in some way is demeaned or attacked or something, yes, that's when I said when I get pushed. Okay. Demeaned, to lower in dignity, honor or standing, to degrade or humiliate someone. मतलब कि किसी का जब आत्मसम्मान आहत होता है, उसे बुरा लगता है, या किसी का सम्मान आहत होता है, तो उसे हम बोलते हैं demeaned. जैसे कि she felt demeaned by the rude comments made by her classmate. उसके आत्मसम्मान को आघात लगा जब उसके जो क्लासमेट थे उन्होंने उससे रूड कमेंट उसके ऊपर किए, बहुत ही बुरे कमेंट किए, तो उसके जो सम्मान था उस पे उसको आघात लगा. The problem with most of us is we end up doing things which is not necessarily what we want to do. It's what we're told to do. It's what we're told to do, or circumstances make you. Sure. Okay. Circumstances. इस वर्ड को आपने हो सकता है सुना हो. इसका मतलब होता है कंडीशंस, सिचुएशंस और फैक्टर्स दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर इवेंट, डिसीजन और इंडिविजुअल. मतलब कि ऐसी कंडीशन या सिचुएशन या कोई फैक्टर जिससे कि एक पर्टिकुलर जो डिसीजन है वो उसको अफेक्ट करे या किसी इंडिविजुअल, किसी आदमी को, औरत को अफेक्ट करे.
ऐसी परिस्थितियां, ड्यू टू फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस वी हैड टू कैंसिल आवर वेकेशन प्लान्स। तो यहाँ पे डिसीजन था कि वेकेशन पे जाना था, और उसको किस सर्कमस्टेंसेस ने प्रभावित किया? फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ने। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब है कि फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्हें जो है वेकेशन प्लान को कैंसिल करना पड़ा। I think when I watch the women's league, and I find that's something which is also really when it's like watching a new emerging kind of activity. Emerging, starting to become known or noticed, coming into existence or prominence। मतलब इमर्जिंग मतलब होता है एक तरह से उभरता हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं ना उभरता हुआ सितारा, इमर्जिंग स्टार, आप न्यूज में सुना होगा या मूवी वगैरह में देखा होगा। तो शी इज एन इमर्जिंग आर्टिस्ट विद अ यूनिक स्टाइल दैट इज गेनिंग अटेंशन। वो एक उभरती हुई सितारा है, आर्टिस्ट है, कलाकार है, विद अ यूनिक स्टाइल, एक यूनिक स्टाइल की जो बहुत ही ज्यादा इस समय अटेंशन गेन कर रही है। Dr. Jaishankar, honor of my life. That's Thank you. all I will say. Thank you for everything you're doing. The whole I is India conversation. We all know that secretly. The youth is obsessed with geopolitics nowadays. Thank you, sir. Means a lot. Looking forward to talking to you again. ऑब्सेस्ड भी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है। बाकी सारे जितने भी अभी तक हमने वर्ड देखे, तो ऑब्सेस्ड का मतलब होता है हैविंग एन इंटेंस, persistent and often irrational preoccupation और fascination with something or someone। मतलब कि किसी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा आदी हो जाना, उसके बिना रह ही नहीं पाना, तो उसे हम बोलते हैं ऑब्सेस्ड। जैसे कि ही इज ऑब्सेस्ड विद हिज गर्लफ्रेंड, मतलब कि वो ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज्यादा मतलब पागल है, आदी है अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति। एक और सेंटेंस, दे आर ऑब्सेस्ड विद वॉचिंग एवरी न्यू मूवी दैट कम्स आउट। मतलब कि वो जितने भी वो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आदी हैं, वॉचिंग एवरी न्यू मूवी, नई मूवीज जितनी भी आती हैं उनको देखने के लिए। तो ये था मतलब ऑब्सेस्ड का। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर यू हैव लर्न सम न्यू वर्ड्स इन दिस वीडियो। तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ वर्ड्स जो आपको पसंद आए उनके सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। देखते हैं आपको कितने वर्ड्स आए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।